भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह विवादों में घिर गए हैं। सरदार पर उनकी मंगेतर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। लड़के के मुताबिक साल 2012 में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 2014 में सरदार सिंह ने उसके साथ सगाई भी की थी, लेकिन अब तक दोनों की शादी नहीं हुई। लड़की ने इस मामले में पंजाब पुलिस से लिखित शिकायत की है। I've been in a relationship with Sardar Singh for the last 4 years. I've been engaged to him for 2 years. He proposed to me in the year of 2014, and then our engagement was consolidated when I visited his native village, Santanagar, in October 2014. After engagement, Sardar pressurized me to be in a physical relationship on the terms of we are going to get married, our engagement has been consolidated, both families have agreed, and we have visited our Namtari sector in Ludhiana district. Physical relationships developed, our relationship itself developed, and within the year of 2015 I fell pregnant with Sardar Singh's child. After consoling with Sardar and consulting him on this matter, Sardar refused to speak to me and was adamant that I should abort the child right away. Being against my will, I then returned to the UK to consult my family, and I was left with no other option but to abort this child against the will of myself. After this matter, Sardar Singh abandoned me, doesn't speak to me, has been in no contact, no messages, nothing, and seems to deny the fact that actually I am his fiancée when it's a world known matter. It's a statement. Yes, Ashwa Bawal is Sardar Singh's fiancée. It's come to the point now where after being physically and emotionally, mentally harassed and blackmailed by Sardar Singh, as a woman, it's not fair. I should take this abuse, not just by him but his elder brother, as well as him. And now my FIR complaint is filed, and we'll see where it goes from here. As a woman, I want justice. I don't think I never agree with domestic violence. I never agree with blackmail or any physical abuse. The fact that Sardar Singh has cheated and committed a fraud crime against me, falsely telling me he's going to marry me, so the false proposal of marriage, I want justice as a woman, and he should come true to his words. वो कहने लगी कि हमने कंसल्ट करना है, मेरे साथ फ्रॉड किया है सरदारा सिंह ने, मेरे साथ फ्रेंडशिप रखी, मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करता रहा और मंगनी भी कर ली, और अब वो मुकर रहा है। तो ये मुझे ये बता कर गई है कि मैंने एप्लीकेशन दे दी है और पुलिस ने उसे आश्वासन दिया है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस बीच यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद सरदार सिंह के पिता गुरनाम सिंह का कहना है कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये देखते हैं गुरनाम सिंह का इस मसले पे क्या कहना है। सब बेबुनियाद झूठे हैं बिल्कुल, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੋਰ कोई। सरदार के पिताजी कह रहे हैं कि वो अपनी बात पूरी रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अशोक ध्यानचंद का कहना है कि इस तरह का आरोप लगाना आसान है, हालांकि खिलाड़ियों को भी किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत ही आसान काम है, और किस वजह से आरोप लगाया गया है और क्यों आरोप लगाया गया ये तो जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, खिलाड़ियों का एक ओपन ज़रा सा होते हैं, सबसे मेलजोल रहता है, और उस बात को देखते हुए इस तरह के आरोप लगाना तो कोई भी कर सकता है बहरहाल। लेकिन मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि हाँ, एक अनुशासन, एक अपना चारित्रिक जो एक हमारा मजबूती होती है, उसको खिलाड़ियों को रखने की ज़रूरत है। क्योंकि खेल में लोगों का मिलना जुलना, आपस में बातें करना, ये तो एक आम बात आज की दुनिया में तो है ही। तो हम समझते हैं कि
दोनों पहलू देखने की जरूरत है। वहीं पूर्व एथलीट सुनीता गोदारा का कहना है कि पहले तो पश्चिमी सभ्यता की तर्ज पर 3 साल साथ रहते हैं, लेकिन जब शादी नहीं होती तो भारतीय बन जाते हैं। पहले तो ये बताइए कि वो 3 साल से साथ रह रही थी, तो जब कोई लड़की इस तरह का स्टेप उठाती है, आप वेस्टर्नाइज तो बन जाते हैं, लेकिन जब बात आती है लिव इन रिलेशनशिप के बाद में शादी नहीं कर रहा है तो आप हिंदुस्तानी बन जाती हैं। वेस्टर्न में क्या होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लिव इन रिलेशनशिप होती है, उसके बाद जब उनकी पटती नहीं है तो वो एमिकेबली अपना सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब लड़की ऐसा स्टेप उठाती है तो ये लड़की को सोचना चाहिए कि आप जब पहले से वो चीज कर रही हैं जो हमारे समाज में मतलब एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, तो जब आप लिव इन कर रही हैं तो लिव इन में असॉल्ट कहाँ से हो गया। उधर इस पूरे मसले पर एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य शमीना शफीक का कहना है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। महिला किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, अपनी इच्छा से बना रही है, मगर किसी दिन वो नहीं बनाना चाहती और उसके साथ इस किस्म की जबरदस्ती हो रही है, चाहे वो एक लव रिलेशनशिप हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, तो ये बिल्कुल गलत है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, और अगर नहीं की गई, वो स्वेच्छा से संबंध बना रही थी और एक दिन उठकर कहती है कि उसके साथ बलात्कार हो रहा था, तो बिल्कुल गलत है और इस किस्म की हरकतों से महिलाओं को बचना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतानंद हमारे साथ मौजूद हैं जानकारी के लिए। इस पूरे मसले पर बड़ा सनसनीखेज मसला, कप्तान सरदार सिंह का मसला। इसमें अमृत ये जानना चाहते हैं, उसमें एक जो इल्जाम लगाया वो ये इल्जाम लगाया कि वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, तो ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ बात जाती हुई कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये जो बात है बहुत गंभीर है, आरोप बहुत गंभीर और संगीन लगाए हैं। जी अमृत। जी बिल्कुल, इस आरोप की कोई बात दोहराई नहीं है। इसमें आरोप जो लगे बहुत संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन जितने भी खेल पत्रकार हैं जो सरदारा सिंह को पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जो एलिगेशंस लगे हैं और सरदारा सिंह का जो नेचर मीडिया के सामने है, जो पत्रकारों के सामने, वो टोटल डिफरेंट नेचर है। बहुत शाही किस्म के नेचर, शर्मीले तरीके के सरदारा है। जितनी बात उनसे की जाए, चाहे वो उनका आप इंटरव्यू करो या ना करो, वो उतनी ही बातें कहते हैं, सटीक बातें कहते हैं, लेकिन जो एलिगेशंस है उसकी सच्चाई क्या है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है। और जो हमारी बातचीत हुई है लुधियाना पुलिस से या फिर कुछ वहां के बड़े जर्नलिस्ट है, उनका कहना क्या है, ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन सरदारा सिंह जो भी चंडीगढ़ में है, हॉकी लीग खेल रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि उनके फादर जरूर कह रहे हैं कि ऐसे जो आरोप है वो उनके करियर को लेकर लगाए जा रहे हैं, जो बातें हैं वो गलत बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन सरदारा सिंह के नेचर को स्पेशली मैं अगर देखकर बोलूं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये है सरप्राइजिंग कि जो एलिगेशंस है कि सरदारा सिंह ब्लैकमेल करते हैं, सरदारा सिंह मारपीट करते हैं, तो थोड़ा सा अफसोस होता है कि ऐसा नेचर उनका शायद नहीं अभी तक मीडिया के सामने आया था, या नेचर भारतीय फैंस के सामने नहीं आया था जिस नेचर की बातचीत हो रही है। जी, तो हमारे सहयोगी अमृत बता रहे थे कि उनके नेचर के बारे में, उनको फॉलो हॉकी भी नज़र रखते हैं और उनके बारे में बता रहे थे, उनका पर्सनल एक जो तरीका है उसके बारे में वो गौर कर रहे थे, जानकारी शेयर कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ अमित चौधरी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, ये जानना जरूरी है कि वो अपने को मंगेतर बता रही हैं, इस बाबत पुलिस का क्या कहना है, रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रही है 3 साल से वो लगातार उनके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशंस के। यहाँ जो उनकी तरफ से दरखास्त दी गई है लुधियाना पुलिस को, उसमें एक सबसे बड़ा एलिगेशन है अटेम्प्ट टू रेप का, जो एलिगेशन सबसे ऊपर रखा गया है। तो पुलिस का ये कहना है कि चूंकि मामला काफी संगीन है, तो ऐसे में सबसे पहले जांच की जाएगी। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच होगी, सारी डिटेल्स निकाली जाएंगी। जो कुछ फोटोग्राफ्स दी गई हैं इस युवती द्वारा वो सब देखी जाएंगी, उनका पुराना कॉल रिकॉर्ड देखा जाएगा, और ऐसी क्या क्या साक्ष्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि उनके साथ जोर जबरदस्ती, उसके बाद ही, इस सब जांच के बाद ही इस मामले में कोई मामला दर्ज हो सकता है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमृत आनंद, हमारे खेल सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, और हमारे साथ सरदारा के कोच बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह की बात तो उसने एलिगेशन में कही है, उसने कहा कि रेप का मामला रखा है सामने, उसने कहा कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे, तो ये सरदारा के बारे में, क्योंकि आप कोच हैं, नजदीकी से समझ सकते हैं, तो क्या आपकी नॉलेज में ये कभी बात आई या इस तरह की कोई चीज सुनी आपने? सर ऐसा है कि मैं जो सरदारा का कोच हूँ, वैसे तो मेरा उसका नाता है वो ग्राउंड से, और कोच का ग्राउंड से नाता होता है जी, ठीक है सर। और जो मैटर जो कल से चल रहा है, ये मैटर उसकी पर्सनल लाइफ से है, जो मेरे को नहीं पता। अभी उसकी पर्सनल लाइफ में अगर उसने मेरे से कभी शेयर ही नहीं किया, और मेरे को जैसे को कह रहा है कि
इनविटेशन, कोई रिंग सेरेमनी, जब मैंने को किसी फंक्शन पे इनवाइट ही नहीं किया, जब मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं इसके बारे में सर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। और जो भी हो रहा है, वैसे तो एक अच्छे खिलाड़ी के लिए उसके ऊपर, बड़े खिलाड़ियों के ऊपर पहले भी देखा गया है, कई तरह के एलिगेशन लगते हैं और उनकी जो देश के लिए इतनी सेवा कर रहा है, तो जो हो रहा है वो बढ़िया नहीं हो रहा। बलदेव जी, बात आपने क्योंकि शुरू से कह दिया कि वो मैं मैदान तक सीमित हूं, मैदान के बाहर की जिंदगी नहीं जानता, लेकिन हालांकि तमाम कोच होते हैं और जब प्रेशर होता है या किसी तरह की कोई बात हो, फीलिंग हो, तो शेयर भी करते हैं। लेकिन आपने क्योंकि उसको कहा कि मुझे जानकारी नहीं, तो मैं उस पर नहीं सवाल पूछूंगा। लेकिन आपको लगता है कि जो ये बात कही गई और जो 3 साल से लगातार ये कह रही है कि हम साथ में थे, ये आरोप है उनके ऊपर, जो एलिगेशन है, जितना को मेरे को टच है, इसके पीछे ना एक षड्यंत्र हो रहा है सरदार के पीछे, जो उसको स्पेशल वहां से बुलाया गया, और उसके पीछे जो हो रहा है एक क्या वजह होगी बलदेव जी? एक अंतर्राष्ट्रीय में जो किया गया बलदेव जी, वो बलदेव जी बहुत बड़ी साजिश हो रही है, साजिश। बलदेव जी, बलदेव जी के ऊपर एलिगेशन आपके बलदेव जी पे चल रहे हैं, आज तक पे चल बलदेव जी चल रहे हैं। बलदेव जी, आपने कहा कि साजिश है, षड्यंत्र है, कौन हो सकता है इसके पीछे? एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, अभी टीम को जाना, ओलंपिक के लिए तैयारी हो रही है, कोई ना कोई तो उसके एंटी तो होता ही, हर चीज के कोई ना कोई एंटी तो होता ही है सर। तो मतलब इसके जो है ना एक षड्यंत्र है जो इसके सरदार को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हो रहा है सर। ये मैं फिर वो सवाल पूछूंगा आपसे कि खिलाड़ियों के बीच की ये रंजिश है, खिलाड़ियों के बीच की पॉलिटिक्स है, फेडरेशन की पॉलिटिक्स है? इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ और इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, एलिमेंट बैड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन शुक्रिया। एक षड्यंत्र जो है वो पता चल जाएगा, आपको जल्दी पता लग जाएगा जी। तो सरदार सिंह के कोच बलदेव जी का कहना है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, और बहुत जल्द ही आपको उसका पता चल जाएगा। तो बड़े एलिगेशंस लगते हुए कप्तान सरदार सिंह के ऊपर, लेकिन उनके पिता ने कहा कि बहुत जल्द ही सरदार सिंह आएंगे सामने और अपनी बात वो सामने रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।